ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ مئی کے 1 اور ذی القعدہ کی 13 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے دورے لداخ کے دوران آج ریلیکس پپرہوا کی زیارت کی، جہاں ان کی مصروفیات زیادہ تر مذہبی اور سرکاری نوعیت کی رہی۔ اس موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بدھ پورنما کے موقع پر لداخ کی بدھ برادری کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ تقریباً 75 سال بعد پپرہوا کے مقدس آثار کی لداخ آمد ایک تاریخی موقع ہے، جسے خطے کے عوام خصوصاً بدھ مت کے ماننے والوں کو روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان آثار مقدسہ کی زیارت کے لیے فراہم کی گئی سہولیات کا بھی ذکر کیا اور اس اقدام کو ثقافتی و مذہبی ہم آہنگی کی ایک اہم مثال قرار دیا۔ اپنے خطاب کے دوران امت شاہ نے لداخ کی صدیوں پرانی روایات، ثقافتی ورثے اور بدھ مت کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ لداخ نہ صرف ترقی و حسن کا گہوارہ ہے، بلکہ یہ روحانیت اور مذہبی ہم آہنگی کا بھی ایک اہم مرکز رہا ہے۔ انہوں نے بدھ دھرم کے پیروکاروں کو اس مقدس موقع کے حصول پر مبارکباد پیش کی۔ اس سے قبل لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ سمیت مختلف مذہبی اسکالرز نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پپرہوا آثار کی اہمیت اور لداخ میں ان کی آمد کو خوش آئند قرار دیا۔ اس تقریب میں ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان، UT انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، ضلع افسران، مذہبی شخصیات اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ دریں اثنا وزیر داخلہ نے اپنے دورے کے دوران لداخ کی مقامی انتظامیہ اور انڈو تبت بارڈر پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اہم میٹنگ بھی کی، جس میں سرحدی سیکورٹی، انتظامی امور اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس دورے کے دوران وزیر داخلہ مختلف ترقیاتی اور سیکورٹی سے متعلق امور کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ دورہ مذہبی، ثقافتی اور انتظامی سرگرمیوں کے حوالے سے اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ دورے لداخ پر کانگریس نے سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وہ خطے کے عوام کے بنیادی مطالبات پر خاموش ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے جمعہ کے روز اس حوالے سے بیان جاری کیا۔ اپنے ایک بیان میں جے رام رمیش نے کہا کہ وزیر داخلہ اس وقت لداخ میں ریلیکس پپرہوا کی نمائش اور اس سے جڑی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، تاہم وہ ریاست کے عوام کے اہم مسائل جیسے ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظ اور زمین و روزگار کے تحفظ جیسے مطالبات پر کوئی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ لداخ کے عوام کافی عرصے سے ان مطالبات کو لے کر آواز اٹھا رہے ہیں، مگر مرکزی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ 2 روزہ دورے پر لداخ پہنچے، جہاں ان کا استقبال لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے کیا۔ اس دوران وہ مختلف سرکاری پروگراموں میں شرکت کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق لداخ میں حالیہ عرصے کے دوران ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول کے نفاذ اور مقامی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے عوامی سطح پر بحث میں تیزی آئی ہے، جس کے باعث یہ معاملہ قومی سیاست میں بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ واضح ہے کہ لداخ کو 2019 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ کا درجہ دیا گیا تھا، جس کے بعد سے یہاں کے عوام کی جانب سے آئینی و انتظامی حقوق کے لیے مسلسل مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आर्मी जनरल अस्पताल लेह में मुनक़्क़द मेगा आई कैम्प ऑपरेशन के अख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये 4 रोज़ा कैम्प फौज के ज़ेर एहतिमाम ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फौजी व शहरी इदारों ने मुश्तरका तौर पर खिदमत अंजाम दी। 27 से 30 अप्रैल तक जारी रहने वाले इस कैम्प में टांसे, न्यूमा, छुशूल, नुब्रा और करील समेत दूर दराज इलाकों से आए मरीजों का मुआयना किया गया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने तकरीबन 950 मरीजों की स्क्रीनिंग की, जबकि 214 पेचीदा ऑपरेशन अंजाम दिए, जिनमें बड़ी तादाद में मोतियाबंद सर्जरी की थी। इस दौरान तकरीबन 15 ऐसे मरीजों की बीनाई बहाल की गई जो पहले मुकम्मल तौर पर नाबीना थे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय फौज खुसूसन फायर एंड फ्यूरी कोर की काविशों को सराहते हुए कहा कि यह इक़दाम लद्दाख के दूर उफ्तादा इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम्मात न सिर्फ बीनाई बहाल करती है बल्कि लोगों में नई उम्मीद, खुद एतमादी और बेहतर ज़िंदगी की राहें भी हमवार करती हैं। तकरीब के दौरान तिब्बी टीम, जिनकी क़यादत ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा कर रहे थे, को एजाज से नवाजा गया, जबकि मुस्तफीद अफराद में आई केयर किट्स भी तकसीम की गई। ज़िले करगिल में मुख्तलिफ इज्तिमाअत के दौरान उलमा ने अवामी मसाइल को उजागर करते हुए इंतज़ामिया और हुकूमत की तवज्जो अहम मामलात की जानिब मबजूल कराई। जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के ज़ेर एहतिमाम मुनक़्क़दा जुमा खुतबे में हुज्जतुल इस्लाम शेख तालिब सुबहानी ने यूनियन टेरिटरी और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़िला करगिल के सबसे बड़ी आबादी वाले इलाकों सब डिवीजन सांको और शक्कर चिकतन शरगोल को ज़िले का दर्जा न देना अवामी हक तलफी के मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालिबा किया कि इन दोनों अहम इलाकों को फौरी तौर पर ज़िले का दर्जा दिया जाए ताकि आवाम को बेहतर इंतज़ामी सहूलियत मैसर आ सकें। अपने खिताब में उन्होंने शाहराहों के किनारे गाड़ियों, तामीराती साजो सामान और दीगर अशिया रखने के अमल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे न सिर्फ अवामी मुश्किलात का सबब बल्कि गैर शरई फ़अल करार दिया। शेख तालिब सुबहानी ने मजीद कहा कि वखा और खंगडाल जैसे अहम मकामात पर मुसाफिरों के लिए बैतुल खुला की सहूलियात का फौदा है, जिसके बाद मुसाफिरों खास कर खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुतल्लक़ हुक्काम से अपील की कि इन मकामात पर फौरी तौर पर अवामी सहूलियात फराहम की जाए। दूसरी जानिब इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेर एहतिमाम मुसल्ला इमाम मिंजीगुंड में मुनक़्क़दा जुमा खुतबे के दौरान हुज्जतुल इस्लाम शेख हमीद नासिरी ने नेशनल हाईवे 301 की खस्ता हाली पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों से नेशनल हाईवे 301 खुसूसन मिंजी और इसके मुलाका इलाकों में सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है, जिसके नतीजे में मुसाफिरों और मकामी आबादी को गर्दोबार और आमद रफ्त की दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए मुतालिबा किया कि इस अहम शहरा की फौरी मरम्मत और तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मसाइल का इजाला हो सके। मकामी अवाम और समाजी हलकों ने भी इन मुतालिबात की तायीद करते हुए कहा कि बुनियादी सहूलियात और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी वक़्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए संजीदा इक़दाम नागुज़ीर हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लद्दाख के महकमे खजाना में अकाउंट्स ऑफिसर के 32 अहदों पर तकर्री के लिए भर्ती इम्तिहान का ऐलान किया है। कमीशन के मुताबिक यह ऑफलाइन इम्तिहान 27 सितंबर 2026 को मुनक़्क़िद होगा। यूपीएससी के नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तिहान एक ही निशस्त में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक लिया जाएगा। यह इम्तिहान इब्तिदाई स्क्रीनिंग के तौर पर होगा, जिसके बाद कामयाब होने वाले और अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को अगले मरहले यानी इंटरव्यू के लिए मतअ किया जाएगा। अकाउंट्स अफसर के अहदों के लिए 4 इम्तिहानी मराकज़ मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, श्रीनगर, लेह और करगिल शामिल हैं। कमीशन ने वाज़ह किया कि इम्तिहानी मरकज़ की तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। इम्तिहान का दौरानिया 2 घंटे होगा और इसमें मल्टीपल चॉइस के सवालात शामिल होंगे। तमाम सवालात के यकसा नंबर होंगे और पर्चा अंग्रेजी ज़बान में होगा। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर मनफी किए जाएंगे, जबकि गैर हल शुदा सवालात पर कोई मनफी नंबर नहीं होगा। इम्तिहान मजमूई तौर पर 300 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। पेशे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें।
मई का पहला दिन आ गया, आम आवाम को शदीद दचका लगा है। मुल्क की तेल कंपनियों ने आज 1 मई 2026 बरोज़ जुम्आ गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने फी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 993 रुपये का इजाफा किया है। दनियासना घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया गया है। आज से सिलेंडर 3071 रुपये में दस्तयाब होगा, जो पहले 2078 से कम था। इसी तरह मुंबई में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। इस सिलेंडर की कीमत अब 3024 तक पहुंच गई है, जो पहले 2031 थी। इस्लामी जमहूरियत ईरान ने अमेरिका की जानिब से हालिया हमलों को सेल्फ डिफेंस करार देने के दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें सरीह जारिहत करार दिया है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बागी ने जुमे के रोज़ अपने बयान में वाशिंगटन के मौक़िफ़ को बेबुनियाद करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में तर्जुमान ने सवाल उठाया कि अमेरिका किस चीज़ के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का दावा कर रहा है। क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था? उन्होंने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि हरगिज़ नहीं, लिहाजा ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारियत है। ये रद्दअमल अमेरिकी महकमे खारिजा के एक बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका इसराइल के साथ मुश्तरका दिफा और अपने हक़ के दिफा के तहत इस जंग में शामिल है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमलों का आगाज़ 28 फरवरी को हुआ, जिसमें फ़िज़ाई कार्रवाइयों के ज़रिए आला ईरानी अहदेदारों और कमांडरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में मुल्क के अहम इक़्तिसादी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक इन हमलों में 3300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जिस पर ईरान ने आलमी बरादरी से नोटिस देने का भी मुतालिबा किया है। ये थे अब तक की खबरें। इसके साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।